So we have seen basic things related to exception handling. That is how to handle the exceptions using different keywords, blocks like try block, catch block, binary block. As well as we have seen two major or mainly used keywords, that is throw and throws in exception handling. And we have already seen what is the exception propagation concept also, and the difference between throw and throws clauses. So here we are going to see today the difference between exception and error. So as we have seen that errors are the mainly type of java.lang.error class, and all the exceptions are the type of java.lang.exception class. Okay, all errors are unchecked type because those it's occurred suddenly, so we don't know those from start. Okay. Exceptions include both checked and unchecked exceptions. Errors happen at runtime. They will not be known to compiler. Okay, compiler never know these type of errors will occur in your program or in your system basically. Checked exceptions are known to the compiler, where the unchecked exceptions are not known to the compiler because those also occur at the runtime. Errors are, we cannot recover the errors, and in exceptions, you can recover from the exceptions by handling it using try catch blocks. Errors are mostly caused by the environment in which application is running, and exceptions are mainly caused by the application itself. For example, Stack Overflow error, out of memory error, and in exceptions, checked exceptions are SQL exception, IO exception. Unchecked exceptions are array index out of bounds exception, class cast exception, null pointer exception, etc. Okay, so these are few differences between exception and error. Next is difference between checked and unchecked exceptions. So what is the exact difference between the checked and unchecked exception? So checked exceptions are always occur at the compile time. So these are also known as compile time exceptions. Unchecked exceptions are not checked at the compile time. Those occur at the runtime. That is why these are also known as runtime exceptions. For examples, अभी हमने देखा था, that is IO exception, class not found exception. So IO exception is related to the input output exception. It can occur at, it can be, we can get it at the compilation time itself. If any class is not able to load or which is not present in your system, then this class not found exception will be thrown. In unchecked exceptions, null pointer exception, those we have seen that using, if you're assigning a value to any variable as a null and you're trying to perform some operation on it, then you will get the null pointer exception. That is because of you are assigning the value to the null, that variable to null. Okay, so these gets checked at the runtime itself because the values can be changed. Array index out of bounds exception is also the same, like you are creating any array and you are trying to save the value which is out of index, array index. Okay, so that time you will get this exception at the runtime. Checked exception must be caught and declared using throws keyword. Okay, so checked exceptions, you can use throws keyword to throw these particular exceptions. Unchecked exceptions are optional to catch or declare using throws keyword. ठीक है, सो मेन ये डिफरेंस है कि अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन है आपको पता नहीं होगा, सो दीज आर ऑप्शनल कि कैच में ऐड करना है कि नहीं या फिर थ्रोज में ऐड करना है कि नहीं, बट चेक्ड एक्सेप्शंस आपको पता हो सकते हैं, दैट इज वाई उसको हमें हमेशा कॉट करना है या फिर डिक्लेयर करना है थ्रोज कीवर्ड के थ्रू. Then checked exceptions handled using try catch block or throws keyword. Unchecked exceptions not required to handle explicitly, but हमें पता होता है, so we can, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो आपको पता होगा तो फिर आप उसको भी ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल कर सकते हो. So flow control is program flow is interrupted and transferred to catch block if the checked exceptions occur, and unchecked exceptions
that will be occurred at the runtime. So program execution is halted with an error message. Okay, so it is halted with an error message. That means ये आपका यहाँ पे ही stop हो जाएगा, execution वहीं पे stop होता है, next statement execute नहीं होते हैं if you are not handling it by try catch blocks. checked exceptions आते हैं हमें फाइल ऑपरेशंस में, डेटाबेस ऑपरेशंस में. एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस जो लॉजिकल एरर्स होते हैं इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स के लिए, एरे एरे जब आप यूज करते हो तब आ सकते हैं. दीज आर अनचेक्ड. ओके, सो these are few differences between checked and unchecked exceptions. Now we are coming to the last point of your exception handling, that is custom exceptions. अभी तक हमने जो देखे वो सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे जो जावा ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं. जावा आपको ये सारे टाइप ऑफ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है. बट द मेन टाइप इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन. अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपके एप्लीकेशन के लिए आपको खुद से कोई एक्सेप्शन डिफाइन करना है, तो हम उस एक्सेप्शन को यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बोलते हैं. सो समटाइम्स द बिल्ट इन एक्सेप्शंस in Java are not able to describe a certain situation. In such cases, user can also create exceptions which are called as user-defined exceptions or custom exceptions. Advantages of exception handling in Java: mainly provision to complete program execution. आपका प्रोग्राम बीच में स्टॉप नहीं होगा, इंटरप्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम कोड एंड एरर हैंडलिंग कोड. आपका आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो कि कौन से कोड में आपका एक्सेप्शन आ सकता है एंड उसको हैंडल भी कर सकते हो. प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, मतलब एक्सेप्शन हमको हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं. मीनिंगफुल एरर रिपोर्टिंग, आप क्लियरली मैसेज दे सकते हो कि किस तरीके का आपको मैसेज देना है, कस्टम मैसेज आपको देना है, वो आप दे सकते हो. दैट इज मीनिंगफुल एरर रिपोर्टिंग. आइडेंटिफाइंग एरर टाइप्स, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चेक्ड है, अनचेक्ड है, या फिर रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट है, या फिर वैल्यू रिलेटेड है, या फिर इंडेक्स रिलेटेड है, तो वो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. ठीक है. सो टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, द सिंटैक्स इज always we create one class, okay, which will be extending exception class और runtime exception class, क्योंकि जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस है वो रन टाइम एक्सेप्शन ही रहेंगे. तो आप एक तो एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड क्लास बना सकते हो या रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास बना सकते हो. एंड यू नीड टू क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर विद द प्रॉपर मैसेज. So we will see one example. So custom exception, यहाँ पे हम करेंगे एज वैलिडेशन. तो एज वैलिडेशन के लिए सबसे पहले तो मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ जो आप सेपरेट क्लास मतलब जावा फाइल में भी क्रिएट कर सकते हो. आई एम गिविंग द नेम एज एक्सेप्शन so that we will identify that class immediately that it is related to the age and it is an exception class. We are creating, this should be the child class of exception class. एक्सेप्शन क्लास का क्रिएट कर सकते हो या फिर रन टाइम एक्सेप्शन का कर सकते हो. उसके अलावा दूसरे किसी का नहीं करेंगे हम. ठीक है. देन हियर वी विल जनरेट द कंस्ट्रक्टर विथ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एज अ मैसेज जो हमें सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को एज इट इज मैसेज फॉरवर्ड करना है. दैट इज वाई हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज करते हैं. ठीक है. सो इतना पार्ट मैंने के लिए, ये जो पार्ट है सीरियल वर्जन यूआईडी, तो हर एक क्लास के लिए हर एक एक्सेप्शन के लिए एक सीरियलाइज्ड वर्जन आईडी जनरेट होता है. तो क्योंकि एक्सेप्शन क्लास जो है वो आपका सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है. तो ये बोल को चाहती हूँ. सो यू कैन सी दिस इम्प्लीमेंट्स द सीरियलाइजेबल इंटरफेस. जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है वो मार्कर इंटरफेस है. हमने ऑलरेडी देखा कि उसमें कुछ नहीं है, इट इज अ ब्लैंक इंटरफेस. बट एज दिस थ्रोएबल क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग द सीरियलाइजेबल इंटरफेस, आपको हर एक एक्सेप्शन क्लास को एक सीरियल वर्जन दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा यूनिकली. ठीक है. जो सीरियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं. दैट इज वाई यहाँ पे जो मैंने एक्सेप्शन क्रिएट किया
एक्सेप्शन क्लास क्रिएट किया, इसमें मैंने ये सीरियल वर्जन यूआईडी डिफॉल्ट वाला एज इट इज लिया है, आप जनरेट भी कर सकते हो इफ यू वांट। क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर दिया तो वो इमीडिएटली आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दिखाता है। तो जनरेटेड अगर करना है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक जनरेट करता है सीरियल वर्जन यूआईडी, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा एज एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, इतना ही क्लास क्रिएट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी इसको टेस्ट करने के लिए वी विल use the main method of custom exception class and perform the operation। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनपुट लेने वाली हूँ यूजर से, जहां पे हम कंसिडर करते हैं कि एक एज यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो सब उसके लिए सबसे पहले हम स्कैनर का रेफरेंस क्रिएट करें, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर रेफरेंस क्रिएट कर लिया, इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज मेथड को भी कॉल कर लिया सो दैट आपका स्कैनर जो है वो स्ट्रीम जो है वो क्लोज हो जाएगी। नाउ इन सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट आई एम आस्किंग यूजर एंटर एज। ठीक है, सो एज मुझे एंटर करना है। आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल इंटीजर एज इज इक्वल्स टू, वी विल रीड द वैल्यू यूजिंग नेक्स्ट इंट। ठीक है, एज वेरिएबल में हमने वैल्यू ले ली। अभी जो भी एज रहेगा, अगर मुझे अबव 59 अबव है वैल्यू एज की, तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ 18 to 60 ये मुझे क्राइटेरिया रखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अ, कर सकते हो कंडीशन, इफ दिस एज वैल्यू इज लेस देन 18, आपको 18 इंक्लूड करना है तो इक्वल टू यूज करो, एंड देन इट शुडंट बी मोर देन 60। ओके, सो ये मुझे क्राइटेरिया रखना है। इफ द एज वैल्यू इज लेस देन 18 और एज वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, सो वी विल बी यूजिंग आवर ऑपरेटर, क्योंकि आइदर द वैल्यू 18 से लेस होगी या फिर 60 से अबोव होगी। आप ये भी कर सकते हो, अगर हमने दोनों दिया, मतलब अगर हमने यहाँ पे एंड यूज किया तो हमें 18 to 60 का रेंज मिलेगा, और यूज किया तो दोनों में से कोई भी कंडीशन जो भी सेटिस्फाई होती है उसके हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। बट मुझे रेंज चाहिए, दैट इज ऑल्सो between 18 to 60, that's why I'm using and operator। अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू है, ठीक, वैल्यू है, तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना है। जो मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखती हूँ एज इज वैलिड और यू आर एलिजिबल। ठीक है, मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे अगर ये नहीं है। ठीक है, अगर इसके बाहर की वैल्यू है, मतलब 18 से लेस है या फिर 60 से अबोव है, तो फिर हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है। जो हम मैसेज देंगे वो प्रॉपर मैसेज आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो ये एक्सेप्शन एक्सटर्नली थ्रो करना पड़ता है, एक्सटर्नली थ्रो करना है, एक्सप्लिसिटली थ्रो करना है, दैट इज वाई हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा थ्रो कीवर्ड। देन द इंस्टेंस ऑफ द कस्टम एक्सेप्शन, जो एज एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप जो भी मैसेज दोगे वो मैसेज आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे कुछ मैसेज दिया है। नाउ वेन एवर यू आर थ्रोइंग दिस एक्सेप्शन यू मस्ट हैंडल दैट एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, या फिर आपको थ्रोज के थ्रू, थ्रोज कीवर्ड के थ्रू इस मेथड से एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, बट जनरली जब आप थ्रो करते हो तो उसको वहीं पे हैंडल कर लो। सो वी विल जो हैंडलिंग कोड है वो हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में, एंड आफ्टर एल्स ब्लॉक आई एम यूजिंग
कैच ब्लॉक में सेम एक्सेप्शन आना चाहिए, सेम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हमें उसी एक्सेप्शन को, जो हम थ्रो कर रहे हैं, उसी एक्सेप्शन को कैच करना है। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ ई डॉट प्रिंट स्टैटस लिखती हूँ। अभी देखो, अगर हमने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, तो हमारा जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेप्शन आता है इस लाइन पे वो यहीं पे कॉट हो जाएगा, इस लाइन तक आपका कोड जाएगा नहीं। तो ये जो स्कैनर का रेफरेंस है, इसको आप क्लोज हम फाइनली ब्लॉक में कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, राइट। एंड एक्सेप्शन नहीं भी आ रहा तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, दैट्स वाई इसको हम क्लोज यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सो फाइनली ब्लॉक में अगर हमने इसको क्लोज कर लिया, सो वी आर क्लोजिंग द रिसोर्स इन द फाइनली ब्लॉक, क्योंकि फाइनली ब्लॉक में आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो एक्सेप्शन आए या ना आए फिर भी वो लाइन ऑफ जितने भी लाइंस है, ये ब्लॉक फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूशन होता ही है। ठीक है, तो इसको मैंने कस्टम एक्सेप्शन को इस तरीके से थ्रो करके दिखाया। वी आर एग्जीक्यूटिंग। अभी देखो, मैंने एंटर किया एज 10, तो हमें एज एक्सेप्शन आया, जो हमने प्रॉपर मैसेज दिया है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एंड ये एक्सेप्शन कहाँ से थ्रो हुआ, तो लाइन नंबर 27 ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने पहले एक्सेप्शन थ्रो करके दिखाया। अगर वैल्यू उस रेंज की है तो मैंने 40 वैल्यू दी, 40 के लिए भी वो ले रहा है ये 40 वैल्यू ली, सबके लिए ये एंटर, वैल्यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल इज लेस देन 18 एंड 760। सॉरी, मैंने थोड़ा, मेरी पहली कंडीशन करेक्ट थी लेकिन मैंने गलत जगह पे इसको थ्रो किया है, यहाँ पे थ्रो होना चाहिए। अगर वैल्यू करेक्ट इस रेंज में है तो आपको एल्स ब्लॉक में वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी ये देखो, ये एज वैलिड है क्योंकि 40 मैंने मेरे रेंज के बीच में है। अगर वैल्यू जो है वो रेंज के बाहर की है, 10, मेरा कंडीशन कुछ गलत हुआ है, लेट मी रीराइट द कंडीशन। इफ एज इज लेस देन, एज इज लेस देन 18 और एज इज ग्रेटर देन 60, तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है। 10 के लिए वैल्यू के लिए एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, एंड 40 एज इज वैलिड, यू आर एलिजिबल, ये भी हुआ है। आई हैव चेंज द ऑपरेटर एंड साइंस ऑल्सो। मैंने यहाँ पे 18 को इंक्लूड नहीं किया है, 60 को भी इंक्लूड नहीं किया है, वो उस एंड यहाँ पे मैंने ऑपरेटर चेंज किया एंड टू, और क्योंकि एक वैल्यू दोनों के इसमें नहीं आएगी, हमें एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करना था, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज की। So this is all about your custom exception. So exception handling is completed. Any doubt in that? No, ma'am. So we will be continuing with the next module, that is module 14, file handling. Okay.
So in file handling concept, we will see that how can we write files. That means how to write the data into files, how to read the data written into the files, okay, using different classes like file reader, file writer, buffer writer, and some input output operations, that is reading, writing, and appending operations. Okay, and we will see how the exceptions are handled in this file handling. तो सबसे पहले तो फाइल की जरूरत क्यों होती है? अगर हमने डेटा स्टोर किया एरे में, जब हम डेटा स्टोर करते हैं, इफ यू आर यूजिंग क्लास, इन दैट क्लास यू आर सेविंग द डेटा इनटू एरे. एरे क्या है? टेम्पररी मेमोरी है. एक बार आप डेटा स्टोर करोगे, बाद में उस डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? एक बार आपका एप्लीकेशन क्लोज हो गया तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे. अगर आपको परमानेंटली डेटा स्टोर करना है तो हमें फाइल्स यूज करने पड़ेंगे. तो आप फाइल्स में डेटा स्टोर कर सकते हो अगर करना है तो, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज और है जो है आपका डेटाबेस. ठीक है, तो फाइल में डेटा स्टोर करना है तब हम फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं. तो जावा प्रोवाइड्स नंबर ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स टू अलाउ यू टू रीड एंड राइट फाइल्स. रीडिंग एंड राइटिंग के लिए बहुत सारे क्लासेस जावा प्रोवाइड करता है. उसमें से कुछ क्लासेस हम देखने वाले हैं, सारे नहीं. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो डेटा होता है वो सब कुछ बाइट ओरिएंटेड होता है. जो भी फाइल्स आप सेव करते हो वो सारे फाइल्स जो है वो बाइट ओरिएंटेड है. डेटा जो है बाइट्स में स्टोर होता है. कभी भी अगर आपने कोई फाइल की साइज देखी तो वो बाइट्स में होती है, राइट? सो क्योंकि डेटा बाइट में स्टोर होता है, सो जावा प्रोवाइड्स मेथड्स टू रीड एंड राइट बाइट्स फ्रॉम एंड इनटू अ फाइल. तो सबसे पहला स्ट्रीम होता है हमारा, जावा आपको प्रोवाइड करता है जो बेसिक स्ट्रीम है, बाइट स्ट्रीम, जिसमें दो क्लासेस आते हैं. एक है इनपुट स्ट्रीम क्लासेस जो रीडिंग के लिए यूज होते हैं. सेकेंड है आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस जो राइटिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम इज अ प्री डिफाइंड क्लास एंड उसके चाइल्ड क्लासेस बहुत सारे हैं जो यूज होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग के लिए. बट अगर आपको कोई कैरेक्टर में डेटा स्टोर करना है, कैरेक्टर वाइज डेटा स्टोर करना है, तो जावा आपको कैरेक्टर स्ट्रीम भी प्रोवाइड करता है जो कैरेक्टर वाइज डेटा स्टोर करेगा. कैरेक्टर स्ट्रीम जो है वो इंटरनली बाइट स्ट्रीम ही यूज करता है. मतलब इट अलाउज यू टू ग्रैब अ बाइट ओरिएंटेड फाइल स्ट्रीम विद इन अ कैरेक्टर बेस्ड ऑब्जेक्ट. तो डेटा आप कैरेक्टर में दे रहे हो बट डेटा सेव बाइट में ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर को बाइट्स की भाषा समझ में आती है, बिट्स की भाषा समझ में आती है, राइट? 0 and 1 बिट्स. दैट इज वाई अगर आपने डेटा कैरेक्टर में भी दिया तो भी इंटरनली ये बाइट स्ट्रीम में ही यूज करेगा. तो कैरेक्टर स्ट्रीम में दो टाइप के क्लासेस हैं, रीडर एंड राइटर क्लासेस. रीडर क्लासेस जो है वो रीड करने के लिए यूज होते हैं, राइटर क्लासेस जो है वो राइटिंग के लिए यूज होते हैं. रीडर एंड राइटर इज ऑल्सो प्री डिफाइंड क्लास in Java and there are multiple child classes of these two classes. ठीक है, ये है हमारा सब कुछ. जो फाइल रिलेटेड ऑपरेशन है वो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन है, राइट? यू आर रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, दैट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन है. दैट इज वाई all these are saved or all these classes are provided into java.io package. ठीक है, java.io पैकेज में आपको सारे क्लासेस दिए गए हैं. अभी बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें फाइल ओपन करनी होती है. फाइल ओपन करने के बाद आपको बताना होता है कि कौन से मोड में करनी है, मतलब किस ऑपरेशन के लिए आपको फाइल ओपन करनी है. सबसे पहला है आपको रीडिंग के लिए करनी है, या फिर राइटिंग के लिए करनी है, या फिर फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना है. आफ्टर ओपनिंग ऑल द फाइल्स परफॉर्म द अप्रोप्रिएट ऑपरेशन एंड ऑलवेज क्लोज द फाइल. ठीक है, अगर आप फाइल क्लोज नहीं करोगे, ओपन ही रखोगे, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मेमोरी लीक का आ सकता है, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस फाइल को ओपन करना चाहोगे तब प्रॉब्लम आ सकता है. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर ओपनिंग एनी फाइल इन एनी मोड, क्लोज दैट फाइल एट द एंड. अभी हम देखेंगे बाइट स्ट्रीम क्लासेस. बाइट स्ट्रीम क्लासेस में है, जैसे मैंने बोला, इनपुट स्ट्रीम क्लास. इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है. एंड इनपुट स्ट्रीम क्लास में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है जो हम यूज करते हैं आपके रीडिंग पर्पज के लिए. सो सबसे पहला है अवेलेबल मेथड, जो रिटर्न करेगा नंबर ऑफ बाइट ऑफ इनपुट
करंटली अवेलेबल फॉर रीडिंग, कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपके रीडिंग के लिए अवेलेबल है, वो यहाँ पे अवेलेबल मेथड देगा। क्लोज मेथड जो है वो इनपुट स्ट्रीम जो ओपन होती है उसको क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं। रीड मेथड, यहाँ पे देखो ये 3 ओवरलोडेड मेथड्स है। रीड मेथड जो विदाउट पैरामीटर्स है, हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा ये मेथड, क्योंकि डेटा जो है वो बाइट बाय बाइट रीड होता है। ठीक है। सो यहाँ पे इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हमेशा नेक्स्ट बाइट अवेलेबल जो है इनपुट का वो रीड होगा। अगर आपका एंड ऑफ फाइल आया है तो -1 रिटर्न होता है, दैट मीन्स आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, ये बताने के लिए -1 विल बी रिटर्न व्हेन द एंड ऑफ फाइल इज एनकाउंटर। सेकेंड ओवरलोड मेथड है यहाँ पे रीड मेथड ही है, बट आप डेटा जो है वो बफर, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर बाइट एरे में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप डेटा रीड कर सकते हो अप टू इस एरे के लेंथ तक। ठीक है। सारा डेटा आप रीड नहीं कर पाओगे, आपने जो ये एरे दिया है इस एरे की जितनी साइज है वो हम रीड करेंगे। ठीक है। तो अटेम्प्ट्स टू रीड अप टू बफर डॉट लेंथ बाइट्स इनटू बफर दिस एरे। ठीक है। एंड रिटर्न्स एक्चुअल नंबर ऑफ बाइट्स दैट वर सक्सेसफुली रीड, जितने भी रीड हो गए उतने वो नंबर ऑफ बाइट्स आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी -1 रिटर्न होगा अगर एंड ऑफ फाइल एनकाउंटर होता है तो। बट यहाँ पे क्या है मेन पर्पस, अगर आपकी पूरी फाइल नंबर ऑफ बाइट्स आपने 10 की बाइट्स किया है एरे क्रिएट, एंड आपकी फाइल में 50 बाइट्स डेटा है, तो वो सिर्फ 10 बाइट्स ही रीड करेगा, बाकी का जो डेटा है वो रीड नहीं करेगा। ठीक है। अभी सेम तरीके से अगर थर्ड एक ओवरलोडेड मेथड है जहां पे आप दो और पैरामीटर्स हम ऐड करते हैं, दैट इज इंट ऑफसेट एंड नंबर ऑफ बाइट्स। यहाँ पे भी डेटा बफर एरे में ही स्टोर होगा, मतलब उसी में आप डेटा को रीड करोगे बाइट बाय बाइट। आपको कहाँ से रीड करना है एंड कितने नंबर ऑफ बाइट्स रीड करने हैं वो आप यहाँ पे दो पैरामीटर्स में दे सकते हो। सो इन ऑफसेट आपको देना है फ्रॉम द पोजिशन स्पेसिफाइड इन ऑफसेट, डेटा आपको कहाँ से स्टोर करना स्टार्ट करना है इस बफर एरे में। दैट इज जब आप नॉर्मली एरे में डेटा स्टार्ट करते हो स्टोर करने के लिए तो वो 0th इंडेक्स पे होता है, पर जब आप ऑफसेट देते हो तो वैल्यू उस इंडेक्स से स्टार्ट होती है बफर एरे में स्टोर होने के लिए। ठीक है। सो स्टार्टिंग पोजीशन है आपकी, स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका ये ऑफसेट, एंड उसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ बाइट्स रीड करने हैं ये आपको यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में देना है। So it returns the actual number of bytes that were successfully read. If the array size is exceeding while storing the, then exception will occur. ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं फिर आउटपुट स्ट्रीम पे जाएंगे। सबसे पहला हम करने वाले रीडिंग अ फाइल। ठीक है। ये बाइट स्ट्रीम का है, दैट इज वाई मैं इसको मूव करती हूँ। बाइट स्ट्रीम का एक पैकेज है, बाइट स्ट्रीम पैकेज क्रिएट करके इसमें मैं मूव करती हूँ इस क्लास को। अभी फाइल रीडिंग कैसे होता है, फाइल रीडिंग के लिए हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला होता है फाइल रीडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, फाइल क्लास है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है उसको, या फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे रेफरेंस, जो आपका फाइल जहाँ पे भी स्टोर किया है उसका रीडिंग करना है। ठीक है। तो उसका लोकेशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं सो दैट हम उसको रीड कर पाएंगे। तो मैं इसी src फोल्डर में न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करती हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रही हूँ टेस्ट नाम का, टेस्ट डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है। ये फाइल क्रिएट हो गई, टेस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग डेटा। ठीक है। ये मैंने स्टोर किया डेटा। अभी इसको हम देखेंगे, रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उसका रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस आइदर आप फाइल क्लास प्रोवाइडेड है उसको यूज करके भी कर सकते हो, फाइल क्लास जो है उसका रेफरेंस क्रिएट करके भी आप वो फाइल का ये दे सकते हो। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास देखने वाले जो आपका यूज होगा,
इनपुट पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें फाइल को रीड करना है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो रीडिंग के लिए यूज होगा। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट में आपको इस कंस्ट्रक्टर में फाइल का लोकेशन देना होता है। अभी फाइल का लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जो फाइल है उसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इस पूरे पाथ को कॉपी करो एंड यहाँ पे डबल कोट्स में ये पूरा ऐड कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम। अभी जो आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है, जो कि आपका इनपुट स्ट्रीम का चाइल्ड क्लास है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम का चाइल्ड क्लास है, जो सिर्फ और सिर्फ फाइल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी आपका क्लास जावा डॉट आईओ पैकेज में डिफाइंड है। तो इसको, ये जो क्लास है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली एक्सेप्शन थ्रो करता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्यों थ्रो करेगा, क्योंकि अगर ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती इस लोकेशन पे, तो उसको कंपाइलेशन के टाइम पे ही समझ में आएगा। दैट इज वाई फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होता है, तो इसको आप ट्राई कैच में ऐड कर सकते हो, ओके, ट्राई कैच में ऐड कर सकते हो। नाउ जो हमने तीन मेथड्स देखे, तीनों मेथड्स का यूज करके मैं बताती हूँ आपको। तीन मेथड्स देखिए, रीड मेथड, ओके, ओवरलोडेड, तीनों मेथड्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला तो बेसिक रीड मेथड जो है यूज करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट फाइंड डॉट रीड, जो रिटर्न करता है सिंगल बाइट, राइट। तो इसको हम सेव करेंगे एक वेरिएबल में, फर्स्ट करके मैंने सेव किया है, ठीक है। इसको हम प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, स्क्रीन पे दिखाना है। रीडिंग करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाना होगा कि आपको, आपने क्या रीड किया है। अगर उसमें इसका डेटा आपको कंसोल पे दिखाना है तो आप इसको यूज करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट बाइट इज इक्वल्स टू, मैंने जो वेरिएबल है फर्स्ट वो यहाँ पे ऐड। अभी जो रीड मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो करती है, दैट इज आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अगर उसमें रीडिंग के लिए डेटा बचा ही नहीं या फिर उसमें कुछ डेटा होगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए आईओ एक्सेप्शन थ्रो होता है रीड मेथड के थ्रू। उसको आप यहाँ पे और एक कैच क्लॉज सराउंड करके ऐड कर सकते हो। ये हमने फर्स्ट बाइट रीड किया, ठीक है। अभी देखो, फर्स्ट बाइट रीड करने के बाद मुझे एरे भी रीड करना है। तो एरे कैसे रीड होगा, अगर ये बाइट रीड होता है, ठीक है, ये इंटीजर डेटा दिखेगा आपको, बट इसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट बाइट क्या है, उसको हमें देखने के लिए जो बाइट वैल्यू है उसको हमें, या फिर इंटीजर वैल्यू है उसको हमें कैरेक्टर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो ही आपको मिलेगा कैरेक्टर डेटा, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। यू कैन सी द बाइट वैल्यू रीड इज 84 फॉर टी कैरेक्टर, ठीक है। तो बाइट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये आपका डेटा जो है वो पूरा क्या आएगा, इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। अभी हम एरे में डेटा रीड करते हैं, तो मैं एरे के लिए एक बाइट एरे क्रिएट करती हूँ। उसको मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 5 साइज का एरे क्रिएट करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली एरे का यूज कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा डेटा है नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करो फाइल, जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉट रीड, एंड देन यू कैन यूज दिस बाइट एरे जो है ARR। अभी हमने फर्स्ट बाइट यहाँ पे ही रीड किया है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के हिसाब से नेक्स्ट डेटा जो है वो आपका यहाँ पे रीड होगा, ठीक है। अभी ये डेटा रीड हुआ है इस एरे में। एरे का डेटा कैसे आपको डिस्प्ले करना है, यूजिंग फॉर लूप। तो आप यहाँ पे फॉर लूप यूज करो, फॉर ईच लूप यूज करो, जो भी आपको करना है आप यूज कर सकते हो। आई विल यूज फॉर ईच लूप, एंड जो भी मेरा डेटा है, अभी अगर मैंने एलएन यूज किया, प्रिंट एलएन, तो प्रिंट एलएन की वजह से डेटा जो है वो न्यू लाइन पे आता है, आएगा, मतलब सारे कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग लाइन पे आएंगे। बट मुझे प्रॉपर डेटा जैसे फाइल में है वैसे चाहिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड का यूज करती हूँ, एंड वी विल
अब कास्टिंग करेंगे इस बाइट बी वेरिएबल का कैरेक्टर में, क्योंकि कैरेक्टर डेटा मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो इतना मैंने फॉर ईच लूप ऐड किया जस्ट टू व्यू ऑल दी डेटा फ्रॉम दिस एरे। कितने बाइट्स रीड हुए? सिर्फ 5 बाइट्स रीड होंगे। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टी था, उसके बाद सिर्फ ESTN पर तक ही रीड हुआ है, क्योंकि सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही रीड होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइज ही सिर्फ 5 दिया है। ओके, नाउ तीसरा जो रीड मेथड है उसके लिए भी मैं वही सेम तरीके से यूज करती हूँ, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एरे साइज। तो मैं यहाँ पे और एक एरे क्रिएट करती हूँ, बाइट ARR1 न्यू बाइट। सपोज मैंने 50 साइज का एरे क्रिएट किया है। We will use this object dot read method, and here I'm giving the read method with the 3 parameters। ठीक है, जहाँ पे array 1 जाएगा ऑफसेट, मतलब मुझे डेटा इस एरे में कहाँ से स्टोर करना है, तो 5th इंडेक्स से स्टोर करना है। नंबर ऑफ बाइट्स कितने स्टोर करने हैं, तो सपोज 20 बाइट्स मुझे स्टोर करने हैं, ये मैंने बताया। ठीक है, ये मैंने स्टोर किया। अभी इसको भी सेम तरीके से हम इटरेट करके दिखा सकते हैं। अभी ये प्रिंट मेथड है, लास्ट वाला भी प्रिंट है, तो इसको मैं यहाँ पे एक प्रिंट एलएन का ऐड करती हूँ, सो दैट न्यू लाइन विल बी एडेड। ठीक है, एक न्यू लाइन ऐड होगी, नेक्स्ट डेटा जो है हमारा न्यू लाइन पे आएगा। यहाँ पे एरे चेंज होगा, दैट इज array 1। ठीक है, इसको array 1 को भी मैंने किया। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के हिसाब से नेक्स्ट जो 5 बाइट्स के बाद के जो भी वैल्यू है वो ये बाइट array 1 में स्टोर होंगे। ओके, तो ये देखो इस तरीके से डेटा आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस है। हमने यहाँ पे ऑफसेट दिया 5, तो पहले 5 इंडेक्सेस उसने छोड़ दिए, उसके बाद के इंडेक्सेस से उसने स्टार्ट किया। इसका जो IN का बाद G था वो यहाँ पे आ गया। ये ऑफसेट की वजह से ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर में कन्वर्जन किया है, दैट इज वाई ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। मैंने 50 बाइट्स ही, सॉरी 20 बाइट्स ही रीड किए हैं, तो ये 20 बाइट्स का ही डेटा रीड हुआ है। नेक्स्ट डेटा जो लास्ट हमारा रीड हुआ ये वाला था, एंड उसके बाद का जो भी डेटा है, मतलब साइज मैंने 50 दी थी इसकी वजह से, एंड स्टोर करते टाइम, रीड करते टाइम सिर्फ 20 बाइट्स ही हमने रीड किए हैं। दैट इज वाई नेक्स्ट डेटा भी आपको एम्प्टी दिखेगा कैरेक्टर वाइज। तो दीज आर 3 रीड मेथड्स इन फाइल इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास, सॉरी लोकेशन पास करके रीड कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है जो मैं यहाँ पे कमेंट में बताती हूँ आपको। आप फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फाइल क्लास है, उस फाइल में आप ये जो हमने दिया हुआ पाथ है वो दे दो, एंड देन यू कैन पास दिस फाइल रेफरेंस हियर। ठीक है, ऐसे 2-3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स फाइल इनपुट स्ट्रीम में है, जहां पे आप फाइल रेफरेंस भी पास कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली स्ट्रिंग लोकेशन जो है हमारा वो भी पास कर सकते हो। फाइल क्लास इज ऑल्सो इन दी java.io फाइल। ठीक है, java.io पैकेज में ही है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये मैंने कमेंट में लिखा है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ ये जो रेफरेंस है इनपुट स्ट्रीम का, ये इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस, हमने फाइल ओपन की है, रीड मोड में ऑपरेशन परफॉर्म किया। नाउ यू नीड टू क्लोज इट। तो इसको क्लोज करने के लिए ये रिसोर्स है, इसको हमें हमेशा क्लोज करना होगा फाइनली ब्लॉक में। बट इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग इट इनटू फाइनली ब्लॉक, जावा 8 में एक नया फीचर प्रोवाइड किया है, दैट इज ट्राई विथ रिसोर्सेस। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको इसको क्लोज कैसे करना है वो बताती हूँ। ट्राई विथ रिसोर्सेस हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो आपको ये सेम रेफरेंस आउटसाइड ऑफ द ट्राई इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सेव या फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा, सो दैट इसको आप क्लोज कर सकोगे फाइनली में।
अगर हमने ट्राई ब्लॉक में क्रिएट किया रेफरेंस तो वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा फाइनली ब्लॉक में, ड्यू टू लोकल एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अभी फाइनली ब्लॉक में हमें पहले चेक करना होगा कि अगर ये रेफरेंस जो है नल नहीं है, नॉट इक्वल टू एफआईएन नहीं है, तो ही हमें इसको क्लोज करना है यूजिंग क्लोज मेथड। तो ये क्लोज मेथड भी आपका एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसको भी ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ये नल चेक नहीं किया तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम इसको इनिशियलाइज किया है नल, एंड अगर ये यहाँ पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म ही नहीं हुए तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नल ही इनिशियलाइज रहेगा, तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज नल और नॉट। नल नहीं है तो ही आप उसको क्लोज करोगे, डायरेक्टली क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज रीडिंग अ फाइल। वी हैव सीन थ्री डिफरेंट मेथड्स। सिंगल बाइट कैसे रीड करना है, एरे में रीड कैसे करना है, एंड एरे में ही हमें ऑफसेट एंड नंबर ऑफ बाइट्स के थ्रू रीड कैसे करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग अ फाइल यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम क्लास। आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो क्लोजेबल एंड फ्लशेबल दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें भी क्लोज मेथड है, क्योंकि स्ट्रीम ओपन होता है तो उसको क्लोज करना हमारी जिम्मेदारी है, तो क्लोज मेथड यूज हमेशा करना है जब भी आप ओपन करोगे तो। ये आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करता है। फ्लश मेथड जो है वो डेटा जो है वो बफर में स्टोर होता है। एक्चुअली जब आप आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज करते हो तो डेटा डायरेक्टली आपका राइट नहीं होता फाइल में, तो पहले डेटा आपका एक टेम्पररी बफर क्रिएट होता है, एरे क्रिएट होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है, एंड उसके बाद आपका डेटा जो है वो एक्चुअल फाइल में स्टोर होता है। सो अगर बफर फुल हो रहा है या फिर बफर को आपको क्लियर करना है, तब हम ये फ्लश मेथड को यूज करेंगे जो आउटपुट बफर को क्लियर करता है। जैसे रीड मेथड से वैसे ही तीन यहाँ पे राइट मेथड से जो राइटिंग के लिए यूज होंगे। आप सिंगल बाइट भी राइट कर सकते हो, बफर भी राइट मतलब एरे भी राइट कर सकते हो, एरे ऑफ बाइट्स। ठीक है, या एरे ऑफ बाइट्स में भी आपको ऑफसेट एंड नंबर ऑफ बाइट्स आप देके वो भी राइट कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ हम अभी देखेंगे। ठीक है, दिस इज आउटपुट स्ट्रीम क्लास, जिसका चाइल्ड क्लास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्लास है यहाँ पे राइटिंग एंड अपेंडिंग फाइल। इसको मैं इसको भी मैं बाइट स्ट्रीम में मूव करती हूँ क्लास को। सेम तरीके से यहाँ पे अभी मैं एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, एंड उसमें मैं एक लोकेशन दे रही हूँ। लोकेशन मैं डायरेक्टली फाइल नेम देती हूँ। ठीक है, राइटिंग टेस्ट करके मैंने फाइल नेम दिया, डॉट टीएक्सटी मैंने एक्सटेंशन दिया। ये फाइल रेफरेंस मैंने क्रिएट किया है, जो फाइल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट आईओ पैकेज से। अभी हमें फाइल को राइट करना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फाइल का रेफरेंस दिया है। ओके, जो नेम है फाइल का, वो फाइल मेरी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे सिस्टम में। जो जब आप इस तरीके से देते हो तो आपके प्रोजेक्ट का जो भी डिफॉल्ट पाथ है उसमें फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक किसी ड्राइव पे वगैरह करनी है तो आपको पूरा पाथ, जैसे हमने रीडिंग के लिए पूरा पाथ दिया था, वैसे ही यहाँ पे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। अगर इस तरीके से दोगे तो इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में फाइल क्रिएट होती है। राइटिंग के लिए हम सबसे पहले तो यूज करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आउट। इसमें अभी हम ये कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे जहां पे इस फाइल का रेफरेंस हम पास करते हैं। दिस कंस्ट्रक्टर सेम एज प्रीवियस,
जैसे रीडिंग के लिए था, ये कंस्ट्रक्टर हमारा एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर ये फाइल नहीं मिली तो। अभी इस फाइल में हमें राइट करना है डेटा। सबसे पहले तो हम राइट करते हैं आउट डॉट राइट, सिंगल बाइट को राइट करेंगे। बाइट वैल्यू इंटीजर में देनी है, ठीक है। तो ये राइट मेथड जो है आपका फिर से एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो हमें सेम इसमें भी आप ऐड कर सकते हो या फिर अलग कैच ब्लॉक में भी ऐड कर सकते हो। ये हमने सिंगल बाइट राइट किया, ठीक है। अगर डेटा हमें एरे में करना है, आप बाइट एरे क्रिएट करो एंड उस एरे को स्टोर करो। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। दिस इज अ टेस्टिंग फॉर राइटिंग फाइल, ठीक है। अभी इस स्ट्रिंग क्लास आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है, दैट इज गेट बाइट्स मेथड। तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो या फिर एस डॉट गेट बाइट्स मेथड यूज करो। ये रिटर्न करता है आपको एक एरे, बाइट्स एरे, ठीक है। बाइट का एरे रिटर्न करता है। अभी इस बाइट्स एरे को आप स्टोर कर सकते हो या फिर लिख सकते हो यूजिंग दिस राइट मेथड, आउट डॉट राइट, जहां पे ये बाइट्स एरे मैंने दिया। अभी ये बाइट्स एरे जो है, ये सब कुछ जब तक आप न्यू लाइन ऐड नहीं करते हो, ठीक है, तब तक ये सेम लाइन पे लिखता जाएगा। ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ऐड नहीं करेगा। आपको फाइल कैसे चाहिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैंने एक बाइट राइट किया है, ये जो डेटा है वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्लैश एन ऐड करती हूँ सो दैट आपका फाइल जो है राइट हो जाएगा। अभी देखो ये फाइल जो है, हमने राइटिंग टेस्ट नाम का फाइल मेरे यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो राइट मेथड जो है फाइल को क्रिएट करता है एंड उसमें डेटा सेव करेगा। देखो यहाँ पे अभी फाइल क्रिएट हुए कि नहीं, कंसोल पे हमने कुछ आउटपुट नहीं दिखाया है तो कंसोल पे कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई, राइटिंग टेस्ट। तो सबसे पहला जो है उसके लिए क्वेश्चन मार्क आया है, सिंगल बाइट हमने राइट किया था एंड ये दिस इज अ टेस्टिंग फॉर राइटिंग अ फाइल, ठीक है। ये हमने ऐड किया, वो भी आ गया। अगर थर्ड बाइट एरे के साथ जो है हमारा मेथड, उसको भी मैंने यहाँ पे यूज किया। मैं सेम बाइट्स एरे यूज करती हूँ। एरे ऑफसेट देती हूँ मैं 2 एंड लेंथ देती हूँ मैं 10, ठीक है। सो 2 से 10 तक, सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होके 10th नंबर ऑफ बाइट्स तक वो रीड करेगा, सॉरी राइट करेगा, ठीक है। तो अभी ये अपडेट होगा फाइल ऑटोमेटिकली इस तरीके से, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेशन होता है। अभी ये पूरा प्रोग्राम हमने एक ही इसमें लिखा है, मतलब एक ही प्रोग्राम में हमने 3 अलग अलग राइट मेथड्स लिखे हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप राइट मेथड यूज करते हो, अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उस फाइल का डेटा जो है वो रिप्लेस होता है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक रन में हमने तीनों राइट मेथड्स को एग्जीक्यूट किया है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको वो समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली बट जब आप इस तरीके से करते हो राइट मोड में, अभी ये फाइल जो है हमने राइट मोड में ओपन की है, ठीक है। ये राइटिंग मोड में ओपन की है। अगर आपकी फाइल राइटिंग मोड में है तो राइटिंग मोड में आपका हमेशा डेटा जो है वो रिप्लेस होता जाएगा ऑलवेज, ठीक है। अगर कुछ डेटा है आपके इसमें एंड आपने इसको राइटिंग मोड में ओपन किया
तो वो रिप्लेस होगा। अगर वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको एज इट इज रखना है, एंड आपको दूसरा डेटा उसको अपेंड करना है। जो नेक्स्ट डेटा हम लिखेंगे उसको अपेंड करना है। तो फाइल अपेंड मोड में कैसे ओपन करनी है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। अभी जो मैंने बताया कि अभी ये आउट जो है हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा एक्सटर्नली। सो क्लोजिंग इज नॉट डन ऑटोमेटिकली, आपको क्लोज करना पड़ता है। तो हमेशा ये रेफरेंस आप ट्राई के बाहर लिखो एंड उसको फाइनली में क्लोज करो, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई जावा 8 ने हमें एक फंक्शनैलिटी न्यू प्रोवाइड की है ट्राई में ही, उसको ट्राई विथ रिसोर्सेस बोलते हैं। तो आप ट्राई विथ रिसोर्सेस के साथ ये ब्रैकेट यूज करके, मतलब एंगुलर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट यूज करके, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर सकते हो। एंड जब आप इस तरीके से करते हो, आप डायरेक्टली बाकी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपका यहाँ पे जो वार्निंग था वो भी चला गया। तो ये जो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपको एक्सटर्नली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इस ट्राई के एनहांसमेंट को एनहांसमेंट टू ट्राई भी बोलते हैं, या फिर ट्राई विथ रिसोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी फ्रॉम जेडीके 8। क्लियर बेसिक रीडिंग अ फाइल एंड राइटिंग अ फाइल यूजिंग बाइट स्ट्रीम हमने देखा। क्लियर है इतना? एनी डाउट? यस मैम। ओके। सो फाइल को अपेंड मोड में कैसे ओपन करना है, एंड कैरेक्टर स्ट्रीम रिलेटेड क्लासेस दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you. You may leave. We will continue in the next session.